ڈو یو تھنک کہ یہ سوال میں ایاز صاحب سے بھی کروں گا، ڈو یو تھنک کہ انڈینز جو پینیٹریشن ہے، شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایون عبداللہ بھی مطلب پاکستان انہوں نے وزٹ کیا اور بڑا مطلب ایک اچھا ماحول کریٹ ہو رہا تھا، لیکن انڈینز دوبارہ سے پینیٹریٹ کر گئے ہیں اشرف غنی صاحب کی جو وہ ہے گورنمنٹ، اور اس کے اندر حالانکہ ان کے چیف آف ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ آئے کاکول میں آ کے انہوں نے باقاعدہ ایڈریس کیا تھا، اور لگ ایسے رہا تھا کہ اب چیزیں جو ہیں بڑی سیٹل ہونے جا رہی ہیں۔ نہیں، وحید ایسا ہے کہ انڈینز نے ہماری جو ناکامی ہے اس کو آپ سویلین گورنمنٹ کہہ لیں یا ہماری جو فورن آفس ہے، انڈیا کا ہمارے اوپر سے گزر کے افغانستان جا کے بیٹھنا یہ سب سے بڑا فیلئر ہے ہماری ایجنسیز کا، گورنمنٹس کا، سب کا۔ اور انہوں نے جس طریقے سے پینیٹریٹ کیا افغانستان میں وہ ہمیں کاسٹ کرے گا بہت عرصہ تک۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے، اس کا الزام سب کو دینا چاہے تو تب بھی دیں، اس میں سب کا فالٹ ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایاز صاحب، انڈین پینیٹریشن جو ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ مسائل ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہندوستان والا جو قصہ ہے افغانستان کے اندر، اس کو ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی اپنے اینگل سے اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات بہت گہرے اور بہت پرانے ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی، سوویت یونین کے آنے سے پہلے بھی، اور اس کے بعد تک جب تک کہ طالبان نہیں آئے تھے ان کے تعلقات بہت قریب تھے۔ اب 9/11 کے بعد ہندوستان میرا خیال ہے دوسرا ملک ہے جو بہت بڑی مدد دے رہا ہے، آئی تھنک 2 بلین سے زیادہ سول پروجیکٹس میں ڈیولپ کرنے میں افغانستان کے اندر، اور اسی طرح تعلقات ظاہر بات ہے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی میرے اور آپ کے لیے تو نہیں کر رہے، اپنے تعلقات مزید سیمنٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ اب آپ کا اعتراض بجا ہے اگر وہ آپ کو اس سرزمین سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس کے لیے نہیں پہنچاتا؟ نہیں، سن تو لو بات، درمیان میں جمپ لگاؤ گے تو بات آدھی رہ جائے گی۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو میں اور آپ تو یہ ثابت نہیں کر سکتے، ہم تو حکومت سے جو سنتے ہیں وہی بات ہمارے اوپر اثر کرتی ہے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ اگر واقعی ایسے ہیں تو وہ شواہد جمع کر لے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لے تاکہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں، وہی بات ہم آگے کریں، اور پھر بائی لیٹرل فورم، ملٹی لیٹرل فورم، انٹرنیشنل فورم، اس ہر جگہ پہ وہ شواہد دکھا دے۔ پہلے تو افغانستان حکومت کو جا کے کہیں کہ یہ آپ کی سرزمین ہندوستان میرے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہ نہیں کرنے دیں گے، وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں کریں گے، آپ کو یہاں اشرف غنی نے ایشورنس دی، وہاں آپ کے وزیر اعظم کو ایشورنس دی، لیکن آپ کی ریزرویشن اپنی جگہ ہے، ٹھیک، آپ شواہد جمع کر لیں، ان کو دیں، اگر نہ مانے تو پھر ایک بات ہے، لیکن اگر صرف آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہندوستان وہاں پہ انفلوئنس زیادہ کر رہا ہے، تو وہ انفلوئنس آج کی نہیں ہے، وہ کونسلیٹ ہندوستان کے آج کے کھلے ہوئے نہیں ہے، وہ بہت پرانے ہیں۔ آپ اپنا سیفٹی والو ذرا ٹائٹ کر لیں، آپ کے بھی تو ادارے ہیں، اگر ہندوستان جیسے بیگ صاحب کہتے ہیں ہمارے اوپر سے اڑ کے وہاں تعلقات اتنے بڑھا تو آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ تو آپ تو افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ملک ہیں، آپ کا مذہب ایک ہے، آپ کی زبان، ایتھنیسٹی، کلچر، بہت ساری چیزیں۔ اچھا، آرمی چیف نے اپنی سپیچ میں کہا بھی تھا 6 ستمبر کو کہ ہمارا تو خون کا رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں، تو وہ اشارہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی طرف ہی دیکھیں، انڈیا کی طرف بھی ہے اور لوگوں کی طرف بھی ہے۔ افغانستان کے اندر دیکھ لے، افغانستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کا جنگ میں زیادہ فائدہ ہے، جنگ حل ہو جائے تو ان کا وہ فائدہ
ज़ाहिर War बात is है, a good business. कई लोग जो हुकूमत में है शायद उनको वो हुकूमत के ओहदे ना मिले या छोड़ने पड़ेंगे जब अगर तालिबान के साथ उनका सुलह पैचअप हो हो जाए, जाती है। पैचअप हो जाए, सही है। तो वो कैसे वहाँ बैठेंगे, या आपके साथ उसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो जाए तो फिर हिंदुस्तान दरमियान में कैसे आएगा। अच्छा, अशरफ गनी इज अ पावरफुल, डू यू थिंक कि उसका अशरफ गनी इतना पावरफुल, एनडीएस के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर, अपने वज़रा के ऊपर, काबीना के ऊपर कंट्रोल कितना? देखिए अब डिटेल तो हमें नहीं पता, हम उसके कारिंदे तो नहीं है, लेकिन बाहर बैठ के इससे अंदाजा हो सकता है कि जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि अब्दुल्ला के खिलाफ तो उसने इलेक्शन लड़ा था, अब्दुल्ला साहब हार गए थे, लेकिन अमेरिकन ने पैचअप कराया, अमेरिकन ने पैचअप कराया, कहते हैं इसको वजीर आजम के जगह पे बिठा दो। तो इससे तो जाहिर होता है कि उसकी इतनी बस नहीं चलती जितनी चलनी चाहिए। फिर उसके इंटेलिजेंस इदारे, या अगर उस पे मसलन चलता भी है कुछ न कुछ हद तक, तो मुल्क के अंदर उसकी जो मुखालिफत तालिबान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो उस इलाके में तो जाहिर बात है उनका कंट्रोल बहुत कमजोर है। अगर आपकी हुकूमत जो कि न्यूक्लियर हुकूमत है, बहुत बड़ी आपकी ऑर्गेनाइज ताकतवर फौज है, अगर इनकी फाटा मेरिट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर अफगानिस्तान में बेचारे उस हुकूमत की न इतनी फौज अच्छी है, न इतनी पुलिस अच्छी है, तो उसका वहाँ पे क्या कंट्रोल होगा। जाहिर बात है बहुत कमजोर कंट्रोल है, और हुकूमत के अंदर भी मैं नहीं समझता इतनी ताकतवर हैसियत है, लेकिन ये कि वो इन्फ्लुएंस कर सके इदारों को, ये क्रेडिट अशरफ गनी साहब को जरूर देंगे कि इन सब के होते हुए उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि आपकी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाया। हालांकि हुकूमत के अंदर भी उनके मुखालिफिन थे, बाहर भी मुखालिफिन थे, लेकिन वो अभी तक उसी जगह पे डटा हुआ है। सरताज अजीज साहब जो वापस आ गए, अगर याद हो, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अशरफ गनी साहब ने मेरे साथ मान लिया या हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और इसी पे हमें इनकेश करके इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ऑफिशियली अफगानिस्तान ने ISPR के डीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको रिजेक्ट किया कि जी ये जो है ये गलत बात है, ये मतलब हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हमारी सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त हम नहीं दे रहे। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आई उसमें कुछ ऐसी बात, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने अशरफ गनी साहब को बताया होगा कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, प्रॉपर्ली वी विल शेयर विद यू। नहीं, उन्होंने जो ISPR की स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया वो हक बजाने में, वो सच बोलते होंगे, उनके इल्म में नहीं होगा। ये ऑपरेशंस, अगर इस ऑपरेशन में उनके यहाँ उनकी लैंड इस्तेमाल की गई है तो वो वाकई इससे बेखबर होंगे, क्योंकि उनके जो अदारे हैं, जो उनकी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनका बहुत मुख्तलिफ तरीका होगा, और तालिबान का भी मुख्तलिफ तरीका है। नेचुरली सिविलियन गवर्नमेंट से कौन परमिशन लेके यहाँ आके कोई ऐसा बिल्कुल सही है, कार्रवाई करेगा। अब देखना ये है कि जैसे वजीर साहब अभी कह रहे थे कि इंडियंस के तल्लुकात बहुत पुराने हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस अभी इंडिया ने वहाँ शुरू किया है वो उसका एक पर्पस होगा। उसका ये पर्पस कोई इतनी लव लॉस्ट नहीं है अफगानियों के लिए, इंडियंस का। वहाँ कोई इतना बड़ा कानून का खजाना नहीं है जहाँ इंडियंस आके बैठ जाएं और इतनी इन्वेस्टमेंट भी करें, इतने कॉन्सुलेट भी खोल लें। क्या बिजनेस है इतना कॉन्सुलेट खोलने का? बेसिकली मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब तल्लुकात करज़ई साहब से ख़राब हुए, मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ, उस वक्त भी इनके कॉन्सुलेट्स की ISI ने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए उसमें यही कुछ था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, एमुनिशन सप्लाई करते हैं ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान के एनिमीज तो देता है ना इनको, ठीक है ना जी। तो अभी ये कह देना कि जिनके तल्लुकात बड़े पुराने हैं और इंडियंस कुछ नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ ये इसके पीछे इनकी NDS को किसने बनाया आप चेक करें। NDS का हेड कौन है? सारी ट्रेनिंग उसने इंडिया से ली है। अच्छा, करज़ई साहब के बारे में अभी एक रिसेंटली आया बड़े एक मोतबर शख्स ने मुझे बताया कि रिसेंटली कोई हफ्ता पहले $10 million the Indians have paid to करज़ई साहब।
देखिए किस चीज की उनको ये सारी मतलब मुझे इल्म नहीं है उन्होंने पैसे कितने दिए हैं या नहीं दिए। बेसिकली जो जो हम भी सुन रहे हैं और ऑथेंटिक तो मैं उसको नहीं कहूँगा इस सेंस में कि हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, बट इंडिया इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। 1 बिलियन का बजट है उनका, ठीक है जी, रॉ का। अगर आप रीजन में देखें तो उनको किसी चाइना से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको हम ही नजर आते हैं। तो वो जो इतनी बड़ी फंडिंग उन्होंने रॉ को दी है तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही होगी? यही प्रॉब्लम हमें ट्राइबल एरिया में आ रहा है और यही प्रॉब्लम हमें बलोचिस्तान में आ रहा है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज ए नेशन, और हमारी आर्मी की कोशिश ये होनी चाहिए कि ठीक है, हमें बावर करवाना चाहिए उनको कि आपकी यहाँ से ट्रबल आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसको बहुत सवेर किस्म का काउंटर करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी सरजमीन को अच्छा इनके लिए इस्तेमाल क्यों होते हैं, हम क्यों इतने उसकी मोहतात होते हैं इंडियंस के बारे में? वो हमारी सिविल गवर्नमेंट है, वो हमारी सिविल गवर्नमेंट है। हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत कभी नहीं आई। आज भी अगर एनडीए आपने जो इजलास था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें भी आप देखें कि पहले सारी ब्रीफिंग जो है आर्मी वालों ने दी है और उनको सारे हकायक बताए हैं। तो अगर आर्मी ब्रीफिंग दे रही है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ब्रीफिंग होगी ना जी, उनके पास कोई चीज तो होगी। लेकिन वो तो इंस्टीट्यूशन है, उसका काम है ना प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना। अगर लेकिन इफ दे आर इन द मीटिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर दे हैव टू ब्रीफ। एक फेडरल मिनिस्टर तो नहीं प्राइम मिनिस्टर को बताएगा कि इंटेलिजेंस। लेकिन वैद साहब हमारी सिविलियन गवर्नमेंट को भी ओन करना चाहिए। इनके दिल में अभी शाम की जैसे ही हुई तो आपको पता है सब न्यूज एजेंसीज को, टेलीविजन को कहा कि आर्मी और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पे आ गई। वो पेज मुझे नहीं समझ आ रहा जिसपे ये एक पेज पे आते हैं। हमारी सिविल गवर्नमेंट, हमारी जो लीडरशिप है वो आर्मी को उस तरीके से ओन ही नहीं करती। इनके हमेशा दिल में एक थोड़ा सा खदशा है कि यार आ जाएंगे, इनको साइड पे रखो, इनको क्रेडिट नहीं देना। क्रेडिट तो उनको आवाम दे ही रही है, ठीक है ना जी। तो ये एक पेज वाला काम जो है ना वो अभी तक हुआ नहीं। सिविलियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लीड ले, जहां कंडेम करना खुल के करे। अगर आपको एविडेंस मिल गया तो आप यानी इंडियन के साथ हमारी जो सरताज अजीज साहब ने जो विजिट करना था, बुनियादी तौर पे जो उफा का वो बहुत उसके ऊपर बात हो चुकी है। वहां पे भी इन्होंने मतलब जो क्रिटिसिज्म आता है वो यही आता है कि भाई जो आप एग्री करके आए हैं वही आपसे फिर वो बात करेंगे इंटरनेशनली। एग्जैक्टली हमारी सिविलियन गवर्नमेंट बिलीव कर, आपने कश्मीर का नाम ही नहीं उसमें डाला हुआ था। आउटस्टैंडिंग इश्यूज सर, सिविलियन गवर्नमेंट जो है, डू यू थिंक कि कोई मसला है या सारा कुछ उन्होंने आउटसोर्स कर दिया? डिप्लोमेटिक कम से कम जो चीज़ें हैं जो आपने फॉरेन ऑफिस के लेवल के ऊपर उठानी है, ताल्लुकात है बाकी ममालिक के साथ, वो तो मतलब सिविलियन लोगों को फिर उनको टेकअप करना चाहिए। देखिए हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की तारीख देख ले, कैसी कैसी हुकूमतें रही है। अगर जमहूरियत कुछ अरसे तक चलती या हिस्ट्री हमारी ऐसी होती तो फिर हम कह सकते थे आज ये हुकूमत है कल वो हुकूमत है, आज जमहूरियत है कल मार्शल है, कल मार्शल है आज फलाना है। हमारा एक मलगूबा सा चला आ रहा है, सिवाय ये पिछले ये दूसरी हुकूमत है जो कंटिन्यूटी पे चल रही है। तो जब तक आपकी ये कंटिन्यूटी ना हो, वो ज़रा थोड़े से अपने पाँव पे खड़े ना हो जाए, जमहूरियत है आपके यहाँ किधर? और ये लोग पैदा किसने कराए? जो आपके ऊपर हुक्मरान है पहले थे या अब है, ये किन के पैदा कर रहा है? ये सही मानों अवाम के वोट से सही मानों में अगर असेसमेंट कर ले तो इनकी अपनी भी जमहूरी हैसियत तो नहीं थी। ये तो किसी ने उठा के बिठा दिए, वहां से वो कोशिश करते हैं कि जड़ें निकाल दे। जमहूरियत ऐसी नहीं होती। जमहूरियत ठीक है, इसके बाद शायद चल पड़े, लेकिन दूसरी तरफ देख ले तो फौज या डिफेंस फोर्सेस ये मुस्तकिल इदारे हैं, इसमें ट्रेनिंग होती है, इसमें लीडरशिप बनती है, तो वो चलते रहे। जब से पाकिस्तान है या अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ये इदारे थे, तो वो कंटिन्यूटी चली आ रही है। वो दूसरी तरफ आपकी कंटिन्यूटी है ही नहीं। एक तो बड़ा मसला ये है। दूसरा जो मैं समझता हूँ, अभी हालत जंग में जाहिर बात है डिफेंस फोर्सेस हावी हो जाते हैं, क्योंकि काम उनका है।
अब फाटा के अंदर जंग है, जंग फौज लड़ेगी, एयरफोर्स लड़ेगी, जंग सिविलियन हुकूमत तो नहीं लड़ सकती। हाँ, ये कमजोरी सिविलियन हुकूमत की जरूर है कि वहाँ कभी कभी तकलीफ करके जाया करे, देखे कि वो भी हमारा इलाका है, उन सिपाहियों को, उन लोगों को जरा सिक्योरिटी क्लियरेंस शाबाश दे। लेकिन ये तो फिर अगर अपने सिक्योरिटी से उनको क्लियरेंस नहीं मिलती तो फिर हवाले कर ले सब सिक्योरिटी के कि हम यहाँ बैठे फजूल वक्त जाया कर रहे। आने वाला टाइम वो ऐसे नहीं होता। क्या मतलब आने वाला टाइम? देखो अगर आपके ये जी अपने आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले या कोई भी डिफेंस फोर्सेस वाले वो इस पोजीशन पे क्यों आ जाते हैं? सही है, इसलिए कि आपके सिविलियन लीडरशिप अपना काम नहीं करती। वो डरते हैं कि अगर हमने ये किया तो ये कुर्सी चली जाएगी। मैं कहता हूं कि जिस दिन आपके सिविलियन लीडरशिप में ये हिम्मत हुई कि कुर्सी को लात मार सके, फौज उसको दो सलाम करे। सही बात है, लेकिन उसके लिए उन्हें किस किस्म का यानी वो हकीमी नुस्खा खाना होगा कि उनके अंदर वो जुर्रत और हिम्मत आ जाए? वो क्या सिरी पाए खिलाते हैं वही साहब। पाकिस्तान में वो लोग चले गए जिनमें वो गैरत थी, जिनमें वो शर्म थी। यहाँ ढिठाई की यह हालत है। आप देखिए कोई शख्स कितना भी बड़ा फेलियर हो जाए, वाकया हो जाए, वो रिजाइन नहीं करता, वो ढिठाई से बैठता है। कल्चर नहीं है ना हमारे। और जैसे वजीर साहब अभी कह रहे हैं कि इनकी कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी खाक हो, करप्ट हैं, नाअहल है, ये इस काबिल ही नहीं थे कि इनको ये हाथ में गवर्नमेंट दी जाए। अब आप देख लीजिए जो आप चर्चे रोज सुन रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये खा गए। सारे हुक्मरानों के बच्चे और सबकी प्रॉपर्टी बाहर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। नवाज शरीफ साहब का बेटा लंदन में 35 इयर्स ओल्ड 9 बिलियन का मालिक है। अब बंदा पूछे इस 35 साल बच्चे के पास 9 बिलियन आए कहां से? कहते हैं हमारे इसाकदार का बच्चा दुबई में है, 600 मिलियन डॉलर है, पूछे ये कहां से आया? ऐसे हुक्मरान होंगे तो फौज तो तकड़ी होगी ना, लोग फौजी की तरफ देखेंगे कि पकड़ो इनको, माल तो सारा खा गए, ना ले कोई काम सही से, माल भी आप खा लें कोई बात नहीं, लेकिन काम तो कर जाएं। काम भी नहीं करते, मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये जमहूरियत, पता नहीं इन्होंने मेट्रो बना दी है, चाइना के साथ सीपैक जो है साइन कर दिया है। अभी वो कहते हैं जी लोड शेडिंग भी 2018 में खत्म हो जाएगी जब ये चले जाएंगे। काम जो है सीपैक का, ये मुशर्रफ दौर में था जिन्होंने इंक किया, वहां से चला हुआ है। मैं नहीं कहता फौज को आना चाहिए, लेकिन इन हुक्मरानों की, इन पॉलिटिशियंस की हालत तो देखें, करप्शन से भरे पड़े हैं, नाअहली इनके अंदर है, कोई काम तो ये करते नहीं है। तो फिर आप कहेंगे जी जमहूरियत बचानी है, पता नहीं जमहूरियत किस चीज का नाम इन्होंने रखा है, अपनी समझ में तो नहीं आता कि किस चीज को ये जमहूरियत कहते हैं। मैं समझता हूं कि फौज का ये रोल जो है, जो आज है, ये मुस्तकिल होना चाहिए ताकि इनको भी डर रहे कि अगर हम करप्शन करते हैं। इसी के ऊपर ही तो इनकी, आपको याद होगा 90s में एक आर्मी चीफ के साथ फटा हुआ था। देखो दूसरी बात ये है वही साहब, ये आए तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये लीडरशिप आर्मी की गोद में बैठ के आई है, उन्हीं से अब इनको नफरत है। वो कहते हैं हमने बड़ी मारें खाई हैं। क्या मारे खाई हैं जी बताएं? कहते हैं 2 दिन अंदर हुए और जाके जद्दा में बैठ के कोई मारे नहीं खाई, बिलियंस ट्रिलियंस कमा लिए हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं। अभी भी इनको गिला इस मुल्क से, मतलब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और 3 बार बनने के बाद ये हालत है जो आज है हमारे मुल्क की हालत। स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है, कोई काम जो नारे लगाए थे वो कहां गए? बिजली लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, किधर गए? ये सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें इनका कमीशन हो और इंटरनेशनल कंपनी इनके साथ हो, दैट्स इट। अभी मैंने कल स्टोरी की, 3 प्लॉट इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल के सैफुर रहमान की कंपनी को दे रहे हैं। पाकिस्तान में उसका ऐड नहीं दिया, सिर्फ कतर में दिया। प्लॉट यहाँ पे है तो कतर में नहीं, अच्छा इधर बनेगा, मैंने कहा बनेगा इधर, ऐड उसका कतर में गया। अच्छा ये हालात है इनके। आज के हालात में भी ये कोई चीज छोड़ने के मूड में नहीं है। LNG स्कैंडल देख लें, नदी का स्कैंडल देख लें, सोलर पावर का देख लें। तो ऐसे हालात में आप क्या इन लीडरशिप से क्या आपकी इस कौम को तवक्को होगी और ये क्या डिलीवर करेंगे? अयाज वजीर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जैसे सवात का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
दैट इज़ अ सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आप फाटा के साथ एडजेसेंट है और वहाँ पे मामलात भी 2009 में वहाँ पे हुआ था ऑपरेशन, और आज तकरीबन 6 साल गुजर गए हैं। तो सिविलियन गवर्नमेंट चाहे वो प्रोविंशियल है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनको फिर अपनी रेट को वहाँ पे कायम करना चाहिए ना, सो डैट फौज जो है वो वापस फिर जो है बैक मतलब बैरक्स में आ जाए। देखिए, अब हमने कुछ तो मजाकन और कुछ सीरियसली हमने हुकूमत की पिटाई कर ली, ये अपनी जगह। सही असेसमेंट कर ले कि हम इस नहज पे आए क्यों आए। इसलिए आए हैं कि हमारे मुसलसल हुक्मरान अपने ऊपर या अपने फैमिली के ऊपर फोकस्ड हैं, सारे इदारे सारे मशीनरी उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस में वो इदारों की कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गई, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है। आप मुशर्रफ साहब के ज़माने का देख लें, उसने फ़ौज को, जिसकी हम इतनी तारीफ अब कर रहे हैं, इसी फ़ौज को उसने कहाँ पहुंचा दिया। सर्कुलर इशू हुआ कि यूनिफॉर्म में बाहर न निकले, ये एक शख्स की वजह से, वरना फौज वही थी, सिर्फ एक शख्स उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर जरदारी साहब आ गए, उन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर लिया। फिर उसके बाद अभी ये हुकूमत देख ले, इदारों को वो अपनी जाती जागीर समझते हैं कि ये इदारे सिर्फ हमें और हमारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। ये अब आप सिक्योरिटी के लिहाज से देख लें, सिक्योरिटी सिर्फ चंद 100 फैमिली की शायद हो रही है, बाकी मैं और आप अगर मरते हैं तो हम वो गिनी पिग्स टाइप वाला हमारा हिसाब है, बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए वाली बात है। सिक्योरिटी हमारे ऊपर न उन्होंने ख्याल किया है न हमारी करते हैं। अगर इस मुल्क में सिक्योरिटी लानी है तो एक काम आप कर ले कल कि इन सब की सिक्योरिटी खत्म, ये भी मेरे और आपकी तरह घूमे फिरे, फिर देखना कि सिक्योरिटी बेहतर होती है कि नहीं। आपकी सारी सिक्योरिटी, आपका केपी की जो वो है फ्रंटियर स्काउट, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, सारी इधर लगी है खिदमतों पे, तो वो उधर अपनी ड्यूटी कर ले जो जिसके लिए भर्ती किया है, या इनकी प्रोटेक्शन कर ले। पुलिस को आप देख ले, पुलिस आप 2800 एहलकार जो है वो सिर्फ एक रायवंड के फैमिली को प्रोटेक्ट, रायवंड के महल को कितने लोग, 2800 एक घराने को प्रोटेक्ट करें, आप इनको निकाल एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ नेशनल टैक्स पेयर मनी। ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स यहाँ तक आई है कि आपके जेल ब्रेक हो जाते हैं, बंदे निकल जाते हैं, रिएक्शन नहीं होती, आपके ऊपर रोज हमले होते हैं, कराची में आपके जहाज तबाह किए जाते हैं, एयरपोर्टों पे GHQ तक लोग आ गए, दलेरी की हद तो है। देखो हमला कर लिया GHQ पे, कोऑर्डिनेशन किधर है? आपके लेफ्टिनेंट जनरल को सड़क के ऊपर मार दिया, वो मेडिकल कोर वाला बेचारा, आपके बाकी कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन लेवल के GOC को मारा था। अभी हम कहते हैं ये कई मरतबा मैंने सुना है कि ये पेशावर वाला इंसिडेंट, ये शुक्र है बहुत बड़े साने से हम बच गए। भाई वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी तो देख ले कि इस जगह तक ये लोग कैसे पहुंचे, वो फेलियर कहाँ है? कहीं तो जिम्मेवारी बनती है किसी की, तो वो जिम्मेवारी वाले के पास ये चीज पहुंचा दे और उनको सजा दे। जब तक सजा न हो, जब तक जिम्मेवारी फिक्स ना हो, इस तरह वाकयात होते रहेंगे, हम रोते रहेंगे और अगले वाकये का इंतजार करेंगे। तो क्या होना चाहिए वेग साहब, क्यों हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो ओन नहीं करती? मतलब सिविल आपकी पुलिस है, बाकी इदारे हैं जो, जैसे अब मैं स्वात की एग्जांपल ली, अभी आपने फाटा के अंदर 2 साल से ज़रब हो रहा है, अब लोगों को भी वापस ले जाया जा रहा है, उनको सेटल किया जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी कोई निज़ाम होना चाहिए ना। वहाँ पे रिफॉर्म्स आप फाटा के अंदर लेकर आएँ, लोगों को ओनरशिप दें, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे चेंज करें, ताकि पूरे का पूरा वो जो पोरस बॉर्डर है वो उसको तब्दील करने के लिए कुछ सोचें आप। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है ना, ये फौज का काम है। ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। आप देखें पेशावर स्कूल के इंसिडेंट के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, इसहाक डार साहब ने उनको एक
ایک पाई रिलीज नहीं की। आपकी जो सिविलियन पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं, जैसे हमारी पुलिस है, इतने अरसे से हम वॉर ऑन टेरर में हैं, आज तक आपको उसको इक्विप कर देना चाहिए था। ट्रेनिंग नहीं है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उनके ऊपर पैसे। और मैं कहता हूँ फर्ज करें आप और मैं कल से कैंपेन चलाऊं तो मैं इनको बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों से इकट्ठे करके दे सकता हूं। वो तब होता है ना जब लोग ट्रस्ट करें, उन्हें पता ये हो कि ये पैसा आप सही जगह जैसे आपने पहले कहा कि मेट्रो के लिए पैसे हैं और नेशनल एक्शन प्लान के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। जान ज्यादा जरूरी है या मेट्रो ज्यादा जरूरी है? आईडीपीज के लिए पैसे नहीं है, मेट्रो के लिए है। और मुल्तान में भी शुरू किया क्योंकि उसकी इंटरनेशनल कंपनी से कमीशन जाती है और बच्चे बाहर हैं, लिहाजा डायरेक्टली कमीशन उनको बाहर चली जाती। मैं ये कहता हूँ हमारे हुक्मरानों की ये प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज उनका माल बाहर है, उनके बच्चे बाहर हैं, हुकूमत से यहाँ पे कोई स्टेक नहीं, हुकूमत से निकलेंगे ठक बाहर चले जाएंगे, मेडिकल बाहर करवाते हैं, स्कूलिंग बाहर है, हर चीज तो बाहर है। उनको आप और मुझसे तो कोई कर्ज नहीं है, यहाँ तो एक टिकर ही चलता है बस, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो बेसिकली इनको किसी तरीके से रियलाइज कराना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का आज सबसे बड़ा इशू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए आपके 90% मसाइल हल हो सकते हैं। क्यों आपका जो है पब्लिक और ब्रेन जो है बाहर जा रहा है, क्यों लोग चीजें बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, आपका सारा सरमाया बाहर लग रहा है क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ सेफ्टी नहीं है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी तब आएगी, इन्वेस्टर तब आएगा, पब्लिक इन्वेस्ट तब करेगी जब उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनका ये है कि हम ठीक हैं, इनको अंदर से हर चीज ठीक लगती है, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं है। वरना ये सागदार साहब पैसे नहीं रिलीज कर सकते थे, पीएम नहीं पूछ सकता था, कुछ नहीं, और आगे भी कुछ नहीं होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। ये अपना टाइम पूरा करेंगे, मजे लूटेंगे और घर जाएंगे। दूसरा कोई आ जाएगा, वो अपनी दिहाड़ी लगाएगा, अपने उसके नए प्रोजेक्ट्स होंगे। ये तो खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें से पैसा निकाल सके। यह सब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान मुल्क के अंदर, पीपल्स पार्टी अपना लगी हुई है, फौज के खिलाफ भी, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। जाहिर है जहाँ पे जिसको गर्मी महसूस होती है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। MQM का अपना एक इशू, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी दी है जी कि हमें आप जिस आपने बलूचिस्तान के लोगों को आप वो कर रहे हैं, अब सियासी धारे में ला रहे हैं। आई डोंट नो कि ये एनोलॉजी उन्होंने कैसे क्रिएट की कि भाई आप लोग तो पिछले 20 साल से गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी और फेडरल, वो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग 2-4 थे उनके साथ भी अभी काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो जब तक ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होगी, ये इलेक्शन कमीशन और ये सारा कुछ जो कुछ चल रहा है, तो फिर कोहेजन कैसे क्रिएट होगा मुल्क के अंदर? देखिए, कोहेजन तो डे 1 से ख़राब है। नेशनल एसेट्स जब तक आप हर एक उसमें शरीक न करे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न हो। जब से पाकिस्तान बना है आपके मेन इंडस्ट्रीज कहाँ लग रहा है, ज़रा देख ले। आज भी या पंजाब में है या सिंध में है, कराची में है, और जगह इंडस्ट्रीज दिखा दे। रॉ मटेरियल वहां से, लोग कारखाने वहां लगाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो, हम उसके पीछे रॉ मटेरियल ले जाते हैं कि कारखाने वहां पे। आप लोगों को वो कुछ नहीं देते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं। आपका सुई गैस जो है सुई के मकाम पे निकला, इसलिए तो सुई गैस बोलते हैं। बलूचिस्तान के अंदर वो गैस इस्लामाबाद पहुंची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक चली गई, लेकिन क्वेटा में 40 साल बाद गई। 40 साल पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही थी, पूरे पाकिस्तान को मिल रही थी। बिजली पूरी की पूरी तकरीबन केपी प्रोड्यूस करती है। केपी में लोड शेडिंग है, बाकी इधर खैर खैरियत है। इधर भी उतनी है, इधर कमजोर जरा है, लेकिन बहरहाल 18वीं तरमीम के नीचे अगर हम सही हिसाब कर लें तो केपी में 1 सेकंड के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं, पहले अपनी ज़रूरत, उसके बाद बाकी सूबों को, सेंटर को दे दो, जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। तो कहने का मकसद ये कि नेशनल एसेट्स पे सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, और फिर उसके बाद आप आ जाइएगा ऑनेस्टी पे या डिसऑनेस्टी पे जो हो रही है, जिनका जिक्र भाई ने पहले किया। रिश्वत है, कमीशन है,
अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एहतसाब कमीशन बनाया है, उस पे बंदा आप लगाएंगे अपनी मर्जी का, मैं लगाऊंगा अपनी मर्जी का, ऐसे एहतसाब नहीं होते। एहतसाब वाला आदमी एहतसाब पे ही तो जरदारी साहब भी परेशान है, वो कहते हैं जिससे पीपल्स पार्टी के लोगों को आप पकड़ रहे हैं। बाकी मुसीबत ये है कि यही पॉलिटिकल पार्टीज देख के दूसरे एंगल से देख ले, इन सब ने मिल बैठ के प्रोटेक्ट पाकिस्तान को क्या था, पीपीओ बना लिया, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस। अब उसके अंदर आपने जब एक मरतबा वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपने डिफेंस फोर्सेस को वो पावर दे दिए जो उनके सोच में भी नहीं थे। आपने उनको एम्पावर कर लिया कि किसी आदमी पे आपको एतराज हो, शक हो, एतराज नहीं तो आप उसके शक हो तो आप उसको अंदर कर सकते हैं 90 दिन के 90 डेज के। अब जब आसिम पे हाथ डाला तो इनको चीखें निकल गई। हाँ। वो ये तो हमने गलती कर ली। और वजीर साहब अभी पंजाब में जिस दिन हाथ डाला तो चीखें आसमान तक जाएंगी। बिल्कुल सही है, बहुत